Hello friends, welcome to Exambi. Today we are in part 4 of this NABARD main series. ठीक है, we have been discussing various tribal affairs, various important issues. ठीक है, और कुछ MCQs भी हमने डिस्कस किए इस सीरीज में. Today we are going to discuss the important reports which has been recently launched and which are important from the point of view of NABARD main syllabus. ठीक है, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ ही दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी है सो दैट इट विच विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस द आंसर राइटिंग. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. So these are two descriptive questions which are very much helpful for your descriptive answer writing practice. ठीक है, both are linked with rural development and agricultural development, and most of the questions which will be coming in ESI section also will be linked with rural and agriculture development, है ना. So that's why these questions are very much important. Here I have linked social help self-help group with rural prosperity and gender equality. So here you need to discuss you need to evaluate the role of self-help groups in rural prosperity and gender equality, है ना. So here you would be the argument on how self-help groups are working and how they are enabling rural prosperity, economic activities in rural areas, है ना. Then savings and financial inclusion in rural areas. Okay, तो ये सब points use करके ये answer लिखना है and it should be linked with rural prosperity as well as gender equality. ठीक है, so I hope you would be able to write these answers. These questions will be discussed in our paid courses. ठीक है, I take weekly classes on Monday. Every Monday मेरी क्लास होती है 7 PM on descriptive answer writing. So those who are preparing for RBI and NABARD should join these classes so that you will be able to see how the answer for these questions can be written. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म. ठीक है, लैंड रिफॉर्म पे प्रीलिम्स नाबार्ड में क्वेश्चन आया था इस बार, नाबार्ड प्रीलिम्स 2021. ठीक है, ग्रेड ए में. तो देर आर हाई चांसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स बीइंग आस्क्ड इन डिस्क्रिप्टिव एज वेल. ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म को आपको डिस्कस करना है विच लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, and you also need to identify the factors which are responsible for the success of land reforms in India. ठीक है, so there are two parts of this question. One is land reform, you can include here zamindari, है ना, then tenancy reform. Okay, then not contract farming but digitization. ठीक है, digitization of land records. Then uh, you can include the distribution of land. ठीक है, distribution of surplus land. Then land acquisition act, all these are land reforms in India. Even swamitva is also land reform. ठीक है, so all these are can be discussed in these land reforms in agricultural development and in rural development as well. So the factors that were responsible for the success of land reforms are there are many factors. ठीक है, there are social factors, economic factors as well. So you need to identify these factors. Okay, so in this way you can write answers for the both the questions. Now before moving further, let me tell you our NABARD grade A and grade B phase 2 courses are going on. Here we are providing 5 mock tests for ASI ARD and 5 mock tests for English as well. ठीक है, और ये फैकल्टी जो ऑलरेडी जिन्होंने नाबार्ड पहले दी है या फिर आरबीआई की मेंस पहले दी है, सो दोज फैकल्टी विल बी इवेल्युएटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. ठीक है, तो एक्सपीरियंस फैकल्टी से आपका इवेल्युएशन होगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. And flat 32% discount is going on. So if you want to ensure your selection and if you want to have a discussion on answer writing and various other aspects of phase 2 with faculty, then you can join these courses. Then similar kind of courses for RBI grade B is also available.
here you will be preparing exclusively under the guidance of faculty, ठीक है, expert faculty. So here we are providing one-on-one session also, where your how to prepare, what to do, what not to do will be specifically told to you, है ना, and you will be under guidance throughout your preparation. So if you want to prepare in an organized way, you can join these courses. ठीक है, अभी आते हैं AISHE रिपोर्ट. ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था रिपोर्ट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सच काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड इन ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम. इनके तो सिलेबस में ही होता है ये एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये और रेगुलेटरी बॉडीज के सिलेबस में ही है. लेकिन जो बैंकिंग एग्जाम्स है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, सो दिस रिपोर्ट इज रिलेवेंट फॉर all the students who are preparing for banking and regulatory bodies exam. ठीक है, so the total enrollment in higher education stands at 3.8%, 3.8 crore in 1920 as compared to 3.74 crore in the year earlier. ठीक है, so you need to remember this figure if you want to quote the status of higher education in India. There you can quote this figure, है ना. If you are writing, let's say, essay on education, so there if you want to give argument on status of education in India, there such figures are important. ठीक है, then gross enrollment ratio has been given here. ठीक है, here also this data also you can you should take note of and you can quote such data in your essays and descriptive answers. There are high chances of asking new education policy and its critical analysis in the upcoming exams. ठीक है, एजुकेशन पे आए दिन बैंकिंग में एसेज भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, टेक नोट ऑफ इट. देन जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन हायर एजुकेशन. ठीक है, ये है 1.01 अगेंस्ट 1 इन 1819. ठीक है, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप नोट डाउन करके रखो. देन पीपल टीचर रेशो इन हायर एजुकेशन इज 26. स्टार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, so all these things are the important things as far as the regulatory bodies and banking exams are concerned, especially NABARD मेंस. ठीक है, NABARD मेंस में रिपोर्ट्स पूछ लेते हैं. एजुकेशन में 2 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तब वो फॉर्मलाइज होने की थी. ठीक है, ड्राफ्ट फेज में थी, तो उस पर क्वेश्चंस पूछ लिए थे. ठीक है, 2019 में, 2019 मेंस. देन दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय यूनेस्को. ठीक है, यूनेस्को ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है कॉल्ड एज स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया. अब इस रिपोर्ट में यूनेस्को ने बहुत ही डिटेल में एजुकेशन सिस्टम का इवेल्युएशन किया है इंडिया की. एंड द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट इज नो टीचर नो क्लास. ठीक है, ये थीम है, नाम नहीं है, ये थीम है, नो टीचर नो क्लास. तो इस पूरे रिपोर्ट में जो टीचर की कैपेबिलिटी है, जो टीचर की फाइनेंशियल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, जो उनके एप्टीट्यूड और कैलिबर है, उन सारी चीजों का इवेल्युएशन किया गया है. तो टीचर के परफॉर्मेंस का हमारे एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट दिखता है, वो सारी चीजें इसमें हमको देखने को मिलेगी. ठीक है, इस रिपोर्ट में यूनेस्को ने 10 रिकमेंडेशन दिए हैं टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, 10 रिकमेंडेशन है. ये सारी की सारी 10 रिकमेंडेशन आपको नोट डाउन करनी है. दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर descriptive answers as well as essay writing as well as your prelims objective. ठीक है, improve the terms of employment of teachers in both public and private school. टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि बहुत सारी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में भी टीचर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो टेम्परेरी नेचर का होता है. काम तो वो फुल टाइम करता है, लेकिन उसको सैलरी पार्ट टाइम वाली मिलती है. 3 या 4 हजार में महाराष्ट्र में या ऑल ओवर और बाकी भी पार्ट्स में देश के बहुत सारे टीचर्स है जो 3 से 4 हजार में फुल टाइम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर टीचर का रिम्यूनरेशन अच्छा होगा, सो ही विल बी पुटिंग इन एफर्ट टू इम्प्रूव द स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर स्कूल. So UNESCO is talking about improving the terms of employment. Then UNESCO is also talking about increasing the number of teachers and improving working condition in northeast states, rural areas and aspirational district. ठीक है, अब ये 3 जो कीवर्ड है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, रूरल एरियाज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट,
है ना। ये पर्टिकुलरली ये रिपोर्ट ये बोल रहा है कि इन 3 जगह पे टीचर्स का नंबर इंक्रीज होने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखना कि whenever you are giving your arguments, you can specifically give arguments in terms of northeast states, rural areas and aspirational district to give the specific arguments, ठीक है। इससे आपके आंसर का क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमने ये दो जो है ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। देन रिकॉग्नाइजिंग द टीचर एज फ्रंटलाइन वर्कर्स, ठीक है, क्योंकि दे विल बी अटेंडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस नाउ, है ना। लाइक पुलिस एंड द हेल्थ वर्कर्स, टीचर्स शुड आल्सो बी recognized as frontline workers. If we recognize them as frontline workers, then they will be eligible for the insurance of 50 lakh, है ना। गरीब आत्मनिर्भर पैकेज में ये इंश्योरेंस अनाउंस किया था ना 50 लाख का हेल्थ वर्कर्स के लिए, तो ये उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इंक्रीज द नंबर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट, वोकेशनल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। इसकी बात हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कही गई है ना, कि एक स्कूल में देयर शुड बी नंबर ऑफ टीचर्स हु आर कैटरिंग टू फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स, है ना। ये सारी चीजें, ये सारी फैकल्टीज जो होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ द प्रोफेशनल ऑटोनॉमी ऑफ टीचर्स। अब यहाँ पे जो है ये जो दसों के दसों रिकमेंडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो, ठीक है। ये एकदम सिंपल है बट वेरी यूजफुल एंड वेरी इम्पैक्टफुल when it comes to evaluate the status and the quality of education in our country, है ना। so you should take note of these 10 points. देन बात करते हैं लैक ऑफ टीचर्स। अब यहाँ पे डेटा दिया गया है। डेटा क्या बोल रहा है, देर आर नियरली 1.2 लाख सिंगल टीचर स्कूल्स, ठीक है। सिंगल टीचर स्कूल मतलब जहाँ पे एक ही टीचर है, एक ही टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है, एक ही टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, एक ही टीचर पीटी या स्पोर्ट्स पढ़ा रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस it will not be very impactful or very outcome oriented teaching, है ना, because only the single teacher will be burdened by the work that will be having in the school। जो क्लरिकल वाला काम होगा, जो पैसों का लेन देन या फिर लिखा पढ़ी का जो काम होगा, अकाउंट्स का काम होगा, वो भी सारा टीचर करेगा, है ना। तो ये एकदम खराब कंडीशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। और आउट ऑफ दिस 1.2 लाख सिंगल टीचर स्कूल, 89% schools are in rural areas। important data, very important data, है ना। this can be used in your descriptive and essays। the report projects that around 11.16 lakh additional teachers are required in order to meet the current shortfall, है ना। now Tripura has the least number of women teachers followed by Assam and Jharkhand। चंडीगढ़ की हालत बहुत अच्छी है, चंडीगढ़ लीड्स द चार्ट फॉलोड बाय गोवा, दिल्ली एंड केरला, ठीक है। सो बाद में यहाँ पे दी है pupil टीचर रेशो शुड बी 30 इन क्लासेस एंड 1:5, नहीं 30:1 फ्रॉम क्लास 1 to 5th एंड 35:1 इन हायर ग्रेड्स, ठीक है। अभी जो हमने AISHE जो रिपोर्ट अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, है ना, वहां पे pupil to टीचर रेशो कितना था, 26, लेकिन चाहिए कितना हायर ग्रेड में 35, 26 है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये 26, ठीक है, लेकिन चाहिए कितना 35, ओके। अभी लेट्स मूव फर्दर। लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है और यूनेस्को का डेटा है, तो बहुत ही क्या बोलते क्रेडिबल डाटा है ना। so here what this report is talking about the overall availability of computing devices, desktop और laptop, ठीक है, desktop और laptop की बात चल रही है। the desktop and laptop availability in school is only 22% schools are having desktop and laptop, ठीक है, overall की बात चल रही है। if it comes to rural areas only 18% and urban areas only 43%। so with this kind of digital infrastructure, how can we expect our students, how can we expect our population to be digitally literate, है ना। और हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, हाउ कैन वी इंश्योर डिजिटल इंडिया विद दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत नेट की हम बात कर रहे हैं, भारत नेट की बात कर रहे हैं, बट ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना। so we are talking about giving 4G or 5G and optical fiber network in rural areas, but our school which is called as social infrastructure
is very poor in terms of digital infrastructure, है ना. So whenever you are you need to evaluate digital India or education system or digital education system in our country, so there you can give these arguments, है ना. So this is also going to help you in your descriptive and essay writing, ठीक है. अगेन दिस सच नंबर्स कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स आल्सो. एक पैसेज दे देंगे, पैरा बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे. पैरा बेस्ड क्वेश्चन होता है तो 2 मार्क्स का आरबीआई और नाबार्ड में, तो उसमें ऐसे डाटा पूछ लेंगे, ठीक है. ये रिपोर्ट का नाम भी पूछ सकते हैं उसमें, बिकॉज ये रिसेंटली अभी अक्टूबर में लॉन्च हुआ है. सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. नाउ recently agriculture ministry of agriculture have launched this consultation paper on the India digital ecosystem of agriculture, ठीक है. Then second report has been launched called as Indian agriculture ripe for disruption. ये जो second report जो launch हुआ है वो किया है launch बेन एंड कंपनी ने, और ये आइडिया वाला जो रिपोर्ट है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने. सो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वाला रिपोर्ट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आइडिया भी रख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, ठीक है. तो इसमें काफी सारा आपको मटेरियल मिल सकता है विच विल हेल्प यू to write agriculture related answers also, and to improve your understanding about the use of digital or we can say artificial intelligence in precision agriculture or let's say agriculture, है ना. So if you want to have more clarity on precision agriculture or digital agriculture, so you should go through the summary of this report, ठीक है. समरी में ये इंडेक्स से मैंने ये लिया है, ठीक है. इंडेक्स में ये सारी चीजें दिए हैं. चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, किसी को पता नहीं है तो यू कैन गो थ्रू दिस. देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम कैसे हुआ, कैसे कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, वो भी इसमें दिया है. देन नीड ऑफ इकोसिस्टम थिंकिंग, ये हमारे उतना काम का नहीं है, बट स्टिल ecological approach is very much needed in agricultural development, so that's why you can go through this article also. उसके बाद में जो डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर की जो पर्सपेक्टिव है वो 4 पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिए हैं, ठीक है. एक एक दो पेज का कंटेंट है. इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कंटेंट यू कैन वॉच दिस, यू कैन गो थ्रू दिस रिपोर्ट, ठीक है. आइडिया रिपोर्ट डालोगे आप और आगे एग्रीकल्चर डालोगे तो ये रिपोर्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है. But you should know at least this dimension that this report has been launched and it has been launched by agriculture ministry. Then annual report of agriculture ministry, ठीक है. annual report of agriculture ministry 2021, ठीक है. very important report for NABARD mains, and there have been significant data given in this report. So if you want to score high in NABARD mains and subsequently in RBI and various banking exams, so you need to be विजिलेंट अबाउट सच रिपोर्ट्स, ठीक है. एनुअल रिपोर्ट जो है एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया है, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही काम का है आपके एसेज में, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, और ऐसे जो है ये प्रीलिम्स वाले जो एमसीक्यूज है उसमें भी आपको काम आएगा. अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इन 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 5 स्टेट्स में का जो जीडीपी है उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का. ये बहुत ही ज्यादा है. आप इन स्टेट्स को बैकवर्ड स्टेट बोल सकते हैं बिकॉज एग्रीकल्चर इज contributing to 30% of GDP. That it also means that the contribution of other sectors like industrial development, manufacturing, service sector are relatively less in these 5 states. ये हम इससे इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं. उसके बाद में नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब कितने खेत है इंडिया में. ये 1-2 एकड़ का खेत, ये 3 एकड़ का खेत, कोई 10 एकड़ का खेत होगा, है ना, कोई आधे एकड़ का खेत होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेशनल होल्डिंग. तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग कितना है, 14.64. ये बहुत ही ज्यादा हो गया. अगर ये ऑपरेशनल होल्डिंग अगर कम होती, अगर ऑपरेशनल होल्डिंग कम होती तो जो हमारी 1 एकड़ 2 एकड़ वाली जो लैंड है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का परसेंटेज कितना है, देखो यहाँ पे 86% है. अगर ये नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग अगर कम होती तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो बड़ी होती, है ना. मान लो अभी 2 हेक्टर वाला एक ऑपरेशनल होल्डिंग है, एक जमीन का टुकड़ा है, तो वो हो सकता है वो 5 एकड़ का होता, 10 एकड़ का होता, 15 एकड़ का होता. जितनी बड़ी आपकी लैंड होती है उतना इनपुट कॉस्ट आपको कम लगता है, and more the input less the input cost as well as more is the production, so it helps to augment the income of the farmer, ठीक है.
तो ये कंसेप्ट यहाँ पे है। ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है टोटल? 14.64 करोड़। ठीक है। देन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर इन टोटल वर्कर्स इज 54.6। ठीक है, जितना हमारा लेबर फोर्स है उसका 54.6% एग्रीकल्चर में काम कर रहा है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि आधी जो जनता है हमारी, आधी जो वर्कफोर्स है वो खेतों में काम कर रही है, और खेतों का जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो कम कम होते जा रहा है दिन ब दिन, है ना। अगर वहां पे एक खेत में 4 लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, तो वहां 8 लोग काम कर रहे हैं, ये सिनारियो है अभी। देन 57.8% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा हाउस होल्ड तो हमारे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द डिमांड इन द इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड, बिकॉज जो बंदा एग्रीकल्चर करता है उसका इनकम जो होता है वो इनहेरेंटली कम होता है। ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर रहा हूं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया का कितना है? 141, 141.25%। ठीक है, नोट करना चाहिए ये फिगर्स आपको। देन 86% क्या कितने हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग है। तो ये स्मॉल एंड और मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले कितने फार्मर्स हैं पूरे इंडिया में? 86%। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब 2 हेक्टर से नीचे। ठीक है, स्मॉल मतलब 2 हेक्टर से नीचे, मार्जिनल मतलब 1 हेक्टर से नीचे। ठीक है। देन पोजीशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, 30% ऑफ द टोटल कल्टिवेटर्स आर वुमेन एंड 40% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल लेबर्स आर वुमेन। ठीक है। फिर आपने हमको यहाँ पे ये डेटा दिया है कि भी फूड सिक्योरिटी के स्टांस में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा डिमांड कितना है और प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो राइस और व्हीट देखो आप, जितना डिमांड है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीरियल्स भी जितना डिमांड है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन पल्सेस में डिमांड है 26 मिलियन टन का, लेकिन प्रोड्यूस कर रहे हैं 23 मिलियन टन। और एंड दैट्स वाई ये पल्सेस का प्राइस जो हो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 100 पर केजी के नीचे पल्सेस ही नहीं मिल रहे आजकल, इतने महंगे हैं। ठीक है, वहां पे आपको विट कितना, 22, 23, 27, 22 से 30 रुपए पर केजी के बीच में वीट आपको मिल रहा है। राइस का जो क्वालिटी है आपको 30 रुपए पर केजी से मतलब आगे 100 केजी पर केजी तक भी है ये राइस, है ना। बट ये पल्सेस जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट स्टिल उसका प्रोडक्शन है वो चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर रिपोर्ट, एनुअल एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2021। उसके बाद में एक रिपोर्ट लॉन्च हुआ है, इंडेक्स ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली। ठीक है, ये रिपोर्ट बनवाया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इसके चेयरमैन कौन है? विवेक देबरॉय। ठीक है, विवेक देबरॉय। तो जो इंडिया में जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 2050 तक 20% के करीब होने वाली है। ठीक है, मतलब 100 में से 20 लोग जो है आपको ओल्ड एज दिखेंगे 2050 तक। सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी आर गिविंग टू आवर गेरियाट्रिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये आपको इम्पोर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। और जो सबसे एजेड स्टेट है वो है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको काम में आएगा। सोशल सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है वो आरबीआई नाबार्ड दोनों के सिलेबस में है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्पफुल इन बैंकिंग, अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द लेबर मिनिस्ट्री, डीजी सक्षम इनिशिएटिव। What does this initiative stand for? It stands for Digital Skill Program to enhance the employability of youth by imparting digital skills that are required in an increasingly technology driven area. तो ये जो डिजी सक्षम इनिशिएटिव है ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, लॉन्च्ड बाय लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, स्किल डेवलपमेंट ने नहीं लॉन्च किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोडल मिनिस्ट्री लेबर मिनिस्ट्री। डिजी सक्षम इनिशिएटिव डिजिटल स्किल प्रोग्राम के लिए, डिजिटल स्किल इंप्रूव करने के लिए है। द जॉइंट इनिशिएटिव विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट इनिशिएटिव विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग प्रोग्राम टू सपोर्ट यूथ फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, सो बोथ ऑफ all the information, all the news are very very important for upcoming NABARD exam. ठीक है, NABARD mains, and it is also going to help us in
in RBI grade B next year and the upcoming IBPS and SBI PO. ठीक है, IBPS और SBI PO में भी ये काम में आएगा. ठीक है. Then the NABARD has recently tied up with AU Small Finance Bank for rural development initiative in Rajasthan. ठीक है. All the three factual information is important. ठीक है. This is going to help self-help group, farmer producer organization, joint liability group and other rural artisans in availing the financial credit. ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये जो स्कीम है वो काम में आएगा. सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ हियर वी हैव एंडेड द सेशन 4 ऑफ NABARD. If you have liked the session, then I would request you to subscribe the channel so that you will get notified whenever the part 5 will be coming. ठीक है, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा. बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए. देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द कोर्सेस, ठीक है, if you are any query regarding the courses, you can contact us through mail hello@exambee.com or you can connect with us through the phone also. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन ऑल द बेस्ट.